This is a project of Xamin Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. Assalamu alaikum. Welcome to Xamin Academy. Today we will start first chapter of your Interphysics. Here we will discuss all the short and long questions that are important for your exams. So for the first chapter is electrostatics and it is named as chapter 12. So first let us learn what is electrostatics. So electrostatics is the study of charges at rest under some electric force. As we know, electro means charge and static means anything which is at rest. So simply charge is at rest under some electric force. And what is electric force? Electric force is a force that holds charges at a certain position to make molecules, compounds, and other things. Okay. So these two are our short answers. Most of the time they come combinedly, like the question define electrostatics and electric force. So these are the answers, but you have to exaggerate them a little bit. Like if you are writing about electrostatics, you have to write study of charges at rest under some electric force, and then this force holding charges to make atoms, compounds, and other material. Okay, you have to exaggerate it a little bit. So we covered our one short question, and now let's move towards a long question, that is Coulomb's law. It often comes as long question but also as short question. So as we know that like charges repel each other and opposite charges attract each other. In this attraction and repulsion, a force is applied, and that force was counted by Charles Coulomb. So the Charles Coulomb gave quantitative analyzing of the force between two charges. Either they are similar or opposite. So let us see here. These are two charges similar. Both charges are negative. These two charges will repel each other with a force. And of course, the direction of force will be opposite. And the distance between them is r. So he analyzed that the force applied on charges is directly proportional to the magnitude of charges, that is q1 charge 1 and q2 charge 2, and also inversely proportional to the square of the distance between them. So if we combine this equation, it becomes force sign of proportionality q1 q2 upon r square. Now we have to remove this sign of proportionality. So we will add a constant, and that constant is k. So the equation becomes 4 is equals to k q1 q2 upon r square. What is k? K is the constant of proportionality, and this k depends upon the medium between the charges and the system of units, like in which system we are measuring these quantities, like force, magnitude of charges, and radius. If there is a free space between both charges, means there is no medium, then and all the measurements are taken in SI unit, then the value of k is 1 upon 4 pi epsilon naught. This symbol is known as epsilon naught. Okay, what is this epsilon naught? This epsilon naught is electrical constant or permittivity of free space. And the value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to power minus 12 Newton meter square per Coulomb square. So if we put value of epsilon naught, we know 4, and the value of pi,
then the value of K, which is the constant of proportionality, becomes 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb. Okay. So now we will put this value of K in this equation as यहाँ पे सही है, ये K है ना, तो अब हम K की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. तो इट बिकम्स F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस एंड देन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये डायरेक्ट यहीं से नीचे आ गया. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वी कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे. F इज इक्वल्स टू, here is 1, so 1 multiplied by them is of course same, so Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught and r square. Okay, now one thing you have to remember is if the charges are similar or opposite, their direction of force will always remain opposite. See, यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जब ये चार्ज इस चार्ज पे Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा रिपेल करने के लिए, तो ये चार्ज इस तरफ को मूव होगा और हम इस फोर्स को लिखेंगे F21, यानी चार्ज 2 पे चार्ज 1 की फोर्स. और जो ये चार्ज है इसके ऊपर Q2 अपनी फोर्स लगाएगा और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और ये फोर्स 1 2. सही है. और अगर ये चार्जेस सिमिलर हैं, ये दोनों अगर ये चार्जेस अपोजिट हैं, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 चार्जेस, अब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिपेल अट्रैक्ट. ओके, ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट. तो अब इस अट्रैक्शन में भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो अपोजिट होगी. और ये जो डायरेक्शन है, चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमेशा इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं. यानी जितनी फोर्स Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे अप्लाई कर रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4 1 2 इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑफ चार्ज 2 1. ओके, इसके साथ साथ हम यूनिट वेक्टर्स भी यूज़ करते हैं फोर्स की डायरेक्शन का है उसको दिखाने के लिए. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ओके, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर्स में. आर यूनिट वेक्टर 1 2 इज इक्वल्स टू माइनस आर यूनिट वेक्टर 2 1. तो हम इस जो आर है इसको भी हम पुट कर दें, तो जो फोर्स है चार्ज 1 पर उसको हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने पहले ड्राइव किया. उसके साथ ही हमने ये आर यूनिट वेक्टर 1 2 लिख दिया. इसको हम आर कैप 1 2 भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कैप बनी हुई है. और फिर हम दूसरे चार्ज की फोर्स लिख दें F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 2 1. सही है, ये हमारी आ गई इक्वेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ. अब ये जो हमने इक्वेशंस निकाली दोनों, ये है फ्री स्पेस की. अगर इस दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाए, फॉर एग्जांपल एयर या फिर वाटर या कोई भी मीडियम आ जाए, कोई पेपर ही क्यों ना आ जाए, तो फिर इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा अब हम वो देखते हैं. सो इफ वी पुट अ मीडियम बिटवीन बोथ चार्जेस, द फोर्स बिटवीन चार्जेस रिड्यूसेस एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ फ्री स्पेस. यानी जो हमारे पास ये फोर्स है ये रिड्यूस हो जाएगी अगर बीच में कोई मीडियम आ जाएगा. तो हम ये इफेक्ट ऑफ मीडियम हो गया, और उस मीडियम को हम एक कांस्टेंट से शो करते हैं जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो रिप्रेजेंट होता है एप्सिलॉन आर से, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. वो फॉर्मूला है वो इस तरह से हो जाएगा कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इतना तो पहले ही था, अब एक मीडियम आ गया तो हमें एक चीज़ एडिशन करनी पड़ेगी, और वो एडिशन है ये एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब ये एप्सिलॉन आर की भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है 8.85,
लेकिन ये एप्सिलॉन आर जो है वो मीडियम का है, और हर मीडियम के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन आर की वैल्यू चेंज होती रहती है। और इस एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ का पूरा टेबल आपकी बुक में गिवन है, तो आपने जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने वहाँ से जो है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमने इसको कंबाइन कर दिया, अलग अलग लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये नीचे आ गया, साथ आर स्क्वायर आ गया। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अ मीडियम। और जो हमने पहले निकाला ये वाले फॉर्मूला, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस। तो इस वीडियो में हमने कवर किए 2 या फिर आप कह लें 3 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन, देन कूलम्स लॉ की पूरी डिटेल। अब ये कूलम्स लॉ अगर शॉर्ट में आता है तो फिर अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, डिफाइन कूलम्स लॉ इन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिर हम ये पूरा डिफाइन करके यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। या अगर वो कहते हैं डिफाइन कूलम्स लॉ इन रिलेटिव परमिटिविटी, तो फिर हम उसके अंदर ये इफेक्ट ऑफ मीडियम करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बताने के लिए। उसके अंदर हमें सारा एप्सिलॉन आर को डिफाइन करना है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ आता है कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, तो फिर हम ये पूरा का पूरा कूलम्स लॉ कवर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे कूलम्स लॉ से 3 क्वेश्चन हो गए कि अगर सिर्फ हाफ पार्ट आए, मीडियम वाला या फ्री स्पेस वाला या फिर पूरा, ये। और उसके बाद एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.